हाय, सो अभी जो मैंने एडिटोरियल भेजा था वो आपने पढ़ लिया? डिड यू ऑल रीड इट? Yes, sir. Yes, sir. ओके. So what is the main thing that the author is trying to say, convey in that? Sir, the tone of the author is first of all negative towards the women-led development which has the government has started, and, and he which has the which negative development? of Which development? this women-led development. Okay, author is criticizing the Negative, government. Okay, and and she he or she is saying that the government has announced, but the execution of the scheme has not been done in the recent past. execution in what sense? Execution with respect to enrollment of women. Execution with in respect to what? Sir, the execution first of all in terms of the uh, funding or the author is Allocation whatsoever of the budget. yes sir, gender budget and Allocation of budget. Right. budget, yes The and what author has stated about gender budget? sir. In the gender budget, the author is saying that the from the year to year basis it has been reduced continuously. Gender budget has reduced continuously. Yes sir. Okay, that's also one of the things that author has stated. Anybody has? Showa, have you read it? No, sir. Then what's the point? Did you not check the mail? Sir, there is a legal article related to company law. That I have That one. that I have shared yesterday, where I have shared the link for the meeting. In that mail only I have shared a very, I mean, 15 minutes back, I just shared the article. Read this before coming to class. Because I wanted you to start reading it in the first 15-20 minutes of the class, from where I could have kick-started the discussion. This is today's editorial. So please keep a very close watch on your email. The moment you know that I have shared the time, it's from 4. So you need to vouch on email from 4. Why am I not creating a group? Let me tell you very clearly. I don't want inter-student communication with respect to anything. Any communication amongst anyone should happen through me or towards me. That's the whole reason why I have not created a WhatsApp group or a Telegram group or anything like that, right? uh, because what happens when I had done this before, a lot of chaos is created, right? Cartelization and everything. So I don't want any student to student connect here beyond the class, anything beyond the class, and that's good for the health of our particular class also, and the entire teaching process. So please keep a close watch on your emails. Now the entire discussion will not make any sense. So go, Showa, come on, start reading that article. Mute the class भैया and start reading it. Yes, Ashish. भै- भैया वो आपका कैमरा थोड़ा डिले कर रहा है So आई I थिंक मेरे में कि सब में एक बार I think तुम्हारे में कर रहा होगा, because मेरा तो I think anybody else is facing this issue. No, sir. Okay, But I Kartikeya. still Yeah, can't find the article. तो मैं रीजॉइन करता हूँ. you cannot find the article. No, sir. अरे check in the same mail, यार. If others are able to find it, you will also able to find it. So बहुत ज़रूरी था ये आर्टिकल क्रिटिकल रीजनिंग जैसे सेगमेंट में ये आर्टिकल डेफिनेटली आ सकता है. इट कैन बी आस्क्ड. इट कैन बी क्या, ऐसे ही
इश्यूज पे पैसेजेस होते हैं. दिस इज द पॉइंट. क्या हो गया यार, ये क्यों नहीं आ रहा है? आपको बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन है कि लास्ट में ये इतना पैराग्राफ आपको बस पढ़ना है. जस्ट हैव टू स्टडी दिस पैराग्राफ. जस्ट हैव टू स्टडी दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ, राइट? और इस पैराग्राफ के बाद जो क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट हैंडिंग ओवर natural resources to a few is indicating towards A, B, C or D. डी भैया, डी डी। Either में काम नहीं चलेगा. D. अच्छा. सर बी लग रहा है। B. हाँ बी बॉल। मल्टीनेशनल कंपनी. यस सर। अच्छा. ओके. और शोआ? Sir, either it's all of the above or mining and industries. ये चूज वन. ऑल आइदर क्या होता है? चूज वन. Mining and industries. ओके. So anybody for space research? शौर्य? सर डी लग रहा है, सी या डी में कोई एक। एक सी या बताओ. डी। एक. सर सी। बी. सी सी। सी. यस सर। Okay. C is correct. यस सर। Mining and industries. How can you make out multinational company here? Where is multinational company mentioned? How can you make out multinational company? You cannot make out. Now, if you have eliminated space research because that's bloody out of the context, the economic policies of the central regime will not include space, cannot include space, or otherwise it would have been written the space policies of or science and tech policy, something like that. So A is eliminated. The moment A is eliminated, D is eliminated. Now you only had to decide between C or B. Now, if you would have read the paragraph again, you should have questioned. The line starts, the reality is that woman, why used the word particularly? These words actually indicate, you know, the emphasis points of author. So that is why this is the beauty of English only. Where author is using particularly, why the author is emphasizing on Dalits and Adivasis, because Dalits and Adivasis, इतना पूरा हम लोगों ने यहाँ पे पूरा वुमेन का जो पोजीशन देखा. अब दलित्स और आदिवासीज के बारे में यहाँ पे क्यों कह रहा है? दलित्स और आदिवासीज के बारे में क्यों कह रहा है? दलित्स एंड आदिवासी वुमेन के बारे में यहाँ पे क्यों बात करेगा? अच्छा, ये जो हम कर रहे हैं, एक एडिटोरियल को इतना डिकोड कर रहे हैं, ये आपको कहाँ पे हेल्प करेगा? एक जनरल अवेयरनेस में आपकी हेल्प करेगा. एक जनरल अवेयरनेस तुम्हें लगता है वो होती है जो तुम जानते हो या जो तुम मानते हो, ओपिनियंस तुम्हारे, वो जनरल अवेयरनेस अच्छी बात है, होनी चाहिए. लेकिन एक जनरल अवेयरनेस वो होती है जो फैक्चुअली करेक्ट है, जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हाईलाइट करती है या जो भी इस समय करंट सिचुएशन में ट्रू है. तो आपका ओपिनियन है एक, और जो फैक्चुअल सिचुएशन है. अब दलित्स एंड आदिवासी वुमेन की बात करेंगे तो सर ये लोग ना ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल्स हैं. और ट्राइबल्स जो हैं कहाँ रहते हैं सर? ट्राइबल एरियाज में रहते हैं. कहाँ रहते हैं? ट्राइबल एरियाज में. अगर सर आप ध्यान से देखेंगे ट्राइबल एरियाज के मैप में इनका स्पेशियल, यू कैन से,
ओरिएंटेशन या डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरीके से ये इंडिया में अपना रीजन ऑक्युपाई कर रहे हैं, तो यू विल फाइंड दिस इंडिया में दैट ये इस वाले रीजन में ज़्यादा रहते हैं। और अगर आप यस क्या कह रहे हो? मैप में स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन इनका इस रीजन में ज़्यादा है। और जब आप इस रीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि फॉरेस्ट कवर जो है वो भी ज़्यादा है। साथ में आपको नॉर्थ ईस्ट में भी, ये यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा कि नॉर्थ ईस्ट में भी ट्राइबल्स जो है ज़्यादा रहते हैं। इनफैक्ट पूरा नॉर्थ ईस्ट ही ट्राइबल्स का है, अलग अलग। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? फॉरेस्ट कवर। क्या इंपॉर्टेंट है? फॉरेस्ट कवर। दूसरा, आप ध्यान से अगर इन रीजन्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ये कुछ नहीं है, ये झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, ये वाला जो बेल्ट है। यहाँ पे आप सर एक चीज़ और पाएंगे कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज जो हैं, इंडस्ट्रीज एंड माइंस, इंडस्ट्रीज बोले तो माइनिंग से रिलेटेड, आयरन एक्सट्रैक्शन वाली इंडस्ट्रीज, कोल इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स, सब कुछ इस जगह पे भी ज़्यादा है। तो एक तरफ फॉरेस्ट कवर है और एक तरफ इंडस्ट्रीज एंड माइंस है इस पर्टिकुलर रीजन में। ये आपको कैसे समझना था? अब आपको दलित्स और आदिवासी वुमेन का अगर स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं पता है इंडिया में, वुमेन छोड़िए, वुमेन तो बाद में आएगा, दलित्स और आदिवासी लार्जली कहाँ पे रहते हैं, अगर आपको यही नहीं पता है तो आप क्या कर पाओगे ऐसे आर्टिकल्स में? नहीं कर पाओगे। आप फिर बोलोगे सर इंग्लिश मेरी खराब है। इंग्लिश खराब नहीं है, ये जनरल अवेयरनेस है। पा गई ये बात? चलो अब बात करें वुमेन के कंटेक्स्ट में। तो वुमेन पे ऑथर कह रहा है कि वुमेन आर मोर वल्नरेबल, वुमेन आर मोर वल्नरेबल, यानी कि ट्राइबल वुमेन आर मोर वल्नरेबल। अब अल्टीमेटली क्वेश्चन आता है, वल्नरेबल तो ठीक है, वाई मोर वल्नरेबल? राइट, मोर वल्नरेबल बिकॉज these women are largely engaged in using or harnessing or collecting forest produce. Forest produce including firewood, including fruits and vegetables, but largely firewood. These women are also actively involved in conservation of forests as well. Chipko movement, Apico movement, नर्मदा बचाओ आंदोलन, are all testimonies to it. Now the women who are dependent on what? Forest produce, and these are tribal areas. The government is handling national resources. So these are national resources only. National resources to mining and industries can be there. Along with this, now those who have answered multinational companies, right? They are also correct. Those who have answered multinational companies, they are also correct. But why didn't you answer mining and industries as well? Multinational companies are correct when you are talking about the entire passage, dear. Are you getting my point? मल्टीनेशनल कंपनी जिन्होंने मार्क करा है वो भी सही हैं,
अगर आप इस पूरे एडिटोरियल की बात करेंगे तो मैंने क्या बोला था आपको, आप इस पर्टिकुलर पैसेज पे सिमटिए। तो उसने पर्टिकुलरली दलित और आदिवासी वुमेन की बात करी है, इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करी है। तो वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है आखिरी आर्टिकल में? क्योंकि उसके पहले उसने कई तरह के वुमेन की बात करी है। इसके पहले वाला जो आर्टिकल है, जो पैराग्राफ है, इसमें कई कैटेगरीज ऑफ वुमेन की बात करी है। वुमेन इन एग्रीकल्चर, वुमेन इन वेज एम्प्लॉयमेंट, है ना, वुमेन वर्क, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन वर्क फोर्स, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इस तरह के बाद में लास्ट में वो आदिवासी और दलित्स पे आ रहा है। तो ये वाला कैटेगरी किस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है? तो ये तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं। और मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में बात करेंगे तो आप यस, यहाँ पे उसने बहुत जगह पे ये बोला है कि गवर्नमेंट मल्टीनेशनल कंपनीज को फ़ायदा देती है, सब्सिडी, और सब्सिडी कह रहे टैक्स बेनिफिट देती है। तो अब उसके बाद अब हम आर्टिकल्स को, एडिटोरियल को डिकोड करते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट सेलिएंट पॉइंट होगा उसको हम अपने यहाँ पे नीचे लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ये बोला इसने वेग फेस, वेग फ्रेज। वेग मतलब क्या होता है? समथिंग दैट डज नॉट मेक सेंस। द जेंडर इक्वालिटी सेक्शन सेज वी एनकरेज वुमेन लेड डेवलपमेंट and remain committed to enhancing women's full, equal, effective, and meaningful participation as decision makers. जब decision makers, it means authority, for addressing global challenges inclusively and in contributing as active participants in all spheres of society, across all sectors and at all levels of the economy. This phrase, women led development, is striking and is the contribution of the government of India. So India has focused, India in G20 has focused on women-led development, but there is no explanation of what this actually means. So author is largely positive so far, but only wants to understand what is women-led development, and hence she changed the direction of the narrative. This is not an issue of semantics. What is the meaning of the word semantics here? Semantics means the study of words. How the words are used and all of this is called semantics, the study and knowledge of words. So author is saying that women led development, ये word का हम डिकोड नहीं करेंगे, लेकिन जब इस तरह के फ्रेज का इस्तेमाल होता है तो लीडर्स को पैरामीटर्स बता देने चाहिए कि वुमेन लेड डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो ऐसे डेवलपमेंट प्रोसेस के क्या पैरामीटर्स होंगे। कैसे हम कह सकते हैं कि ये वुमेन लेड डेवलपमेंट है और ये नॉन वुमेन लेड डेवलपमेंट है? गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ पैरामीटर शायद नहीं बताया है। द ट्रूथ इज दैट डेवलपमेंट मॉडल्स जो कंट्रीज ने अडॉप्ट किए हैं, जो खुद को डेमोक्रेसीज कहती हैं, यानी मेनली कंट्रीज जो डेवलप्ड हैं, वेस्ट में है, they have in their model have led to obscene inequalities between countries. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो गई है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, सब तो देख ही रहे हो तुम लोग, वेस्ट वर्सेस अफ्रीका चल रहा है, जो भी है, रिच और पुअर और मैन और वुमेन के बीच में। यानी जिन कंट्रीज ने, यहाँ पे ऑथर क्या कह रहा है कि द ट्रूथ इज दैट द डेवलपमेंट मॉडल्स एडॉप्टेड बाय कंट्रीज डिस्क्राइबिंग देमसेल्व्स एज डेमोक्रेसीज हैव लेड टू दिस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। आप उनसे क्या ही एक्सपेक्ट करोगे विद रिस्पेक्ट टू वुमेन? तो इंडिया को यहाँ पे बेटर डेफिनेशन दे देना चाहिए था, वरना ये कंट्रीज अभी किसी एक नैरेटिव से खुद को बोल देंगे कि हम वुमेन लेड डेवलपमेंट में हम आगे हैं। द कोर ऑफ दिस मॉडल रिमेन्स द डिस्क्रेडिटेड ट्रिकल डाउन थियरी। कौन से मॉडल की बात कर रहा है? जो डेवलप्ड कंट्रीज ने मॉडल रखा है, in which big business continues to enjoy state subsidies through tax concessions, bank loan write-offs, subsidies in land availability, and cross-country concessions for the free movement of finance capital on the premise that all this will lead to more investment, creation of employment, and so on. But you notice here, it is not talking about India. And that is why in this question, multinational companies would be a distant रिलेटिव पॉइंट। रिलेट कर रहा है पर थोड़ा दूर है। माइनिंग और इंडस्ट्रीज डायरेक्ट इन्फर हो रहा है। इस पैसेज में ट्रिकल डाउन थियरी में क्या कह रहा है? ट्रिकल डाउन थियरी में ये कह रहा है कि सरकार का जो पूंजी है, सरकार अपना जो बहुत बड़ा अमाउंट है जो डेवलपमेंट के लिए लगाती है,
उसमें कंपनीज को, प्राइवेट कंपनीज को वो पैसा ईजिली देती है। कैसे? आसानी से उतने बड़े सरकार के पैसे से कंपनी आके लोन मांग सकती है सस्ते इंटरेस्ट रेट पे। बैंक लोन, अगर मान लो एक कंपनी ने ये दिखा दिया कि हमने गवर्नमेंट की बहुत हेल्प करी है इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, तो गवर्नमेंट ने उसके सारे लोन माफ़ कर दिए। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कह रही है कि आपके सारे लोन माफ़ है, क्योंकि गवर्नमेंट ये मानती है कि यार ये पैसा तो हमको लगाना ही पड़ता, पर एक कंपनी ने अगर रोड बनवा दी है बढ़िया एक मोहल्ले की, तो उसने जो अगर मुझसे अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए लोन लिया है तो चलो माफ़ कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं, है ना, ये अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने अपने यू कैन से प्रोसेसेस को इस तरीके से दिखा सकती हैं जहाँ पे ये चीट कर रही हो गवर्नमेंट को, क्योंकि आप रिलाई नहीं कर सकते ऐसा, राइट? गवर्नमेंट ये काम आफ्टर ऑल क्यों करती है? गवर्नमेंट सोचती है कि अगर कंपनीज को हम फायदा देंगे तो कंपनीज क्या करेंगी? इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगी, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा करेंगी एंड सो ऑन। ऐसे इकोनॉमिक मॉडल को वेस्टर्न कंट्रीज चला रही हैं, जिसकी वजह से दो चीज़ें हुई हैं। मेन और वुमेन के बीच में इनइक्वालिटी बढ़ गई है और इंटर कंट्री इनइक्वालिटी भी बढ़ते हुए नजर आ रही है। फिलहाल गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है लार्जली, ये लाइन क्या इंडिकेट करती है? द नो गवर्नेंस इज गुड गवर्नेंस मॉडल। ध्यान से सुनिएगा, हर जगह ये मॉडल की बात कर रहा है। यहाँ पे भी इसने जो बात करी है डेवलपमेंट मॉडल्स की बात करी है, और यहाँ पे उसके पहले भी इसने जो बात करी थी, यहाँ पे भी इसने मॉडल्स की ही बात करी है। वुमेन लेड डेवलपमेंट डिस्क्राइब द पैरामीटर्स ऑफ सच डेवलपमेंट प्रोसेस विच आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन वुमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल्स। तो इकोनॉमी स्टेट को जिस तरीके से डेवलप होना चाहिए, जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, उस उन तरह के इकोनॉमिक मॉडल्स के कैटेगरी पे थ्रेडबेयर बेसिस पे एनालिसिस दे रहा है ऑथर। एक तरफ वुमेन लेड डेवलपमेंट है, एक तरफ नॉन वुमेन लेड डेवलपमेंट है, और अब पूरा क्रिटिसिज्म पैसेज के मिड में पूरा क्रिटिसिज्म वेस्टर्न इकोनॉमीज के द्वारा किए गए डेवलपमेंट का है कि उनके तरीकों में क्या गलती है, राइट? अब वेस्टर्न इकोनॉमीज की बात हो रही है तो आप इसमें इंडिया को नहीं घुसेड़ देंगे अपने दिमाग में कि ये इंडिया की बात तो कर ही नहीं रहा है। जब बात करता है द नो गवर्नेंस इज गुड गवर्नेंस मॉडल हैज रिमूव्ड गवर्नमेंट रेगुलेशन, तो ये क्यों कहता है ऑथर कि नो गवर्नेंस इज गुड गवर्नेंस? इसका मतलब क्या है? ऑथर क्या कह रहा है छोड़ो, नो गवर्नेंस इज गुड गवर्नेंस का करंट कॉन्टेक्स्ट में मतलब क्या है? सर ये हो सकता है कि जो भी मतलब इन लोग की मतलब जो जो ऑथर है वो मतलब इसको मतलब नेगेटिव पे कह रहा है, मतलब गवर्नेंस इज गुड गवर्नेंस, मतलब जितने भी मतलब गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां हैं वो उनको फोल्ड ऑफ कर नो दें। नो, हम मॉडल्स की बात कर सर रहे हैं। इसके हम इसके कहने का मतलब है सर कि कोई भी गवर्नमेंट एक्चुअल में वो जो उनको मतलब एक्चुअल में उनके जो रिजीम है वो फॉलो नहीं कर रही है मतलब। नो नो, हमने बार बार ओके। वर्ड किस पे फोकस किया है? मॉडल्स पे, ठीक है? अब यही है करंट अफेयर्स का डर्थ, लैक, जिसकी वजह से आप रीड तो कर लिए एडिटोरियल, अब समझ में आया मेरे को क्या प्रॉब्लम है। रीड तो कर लिया एडिटोरियल, बुझा ही नहीं रहा है कि क्या कहना चाह रहा है उसमें। नहीं बेटा, आजकल के टाइम पे डेवलप्ड कंट्री हो चाहे डेवलपिंग कंट्री हो, वो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहती है, ऐसे एक मॉडल को लेना चाहती है जहाँ पे गवर्नमेंट को हर जगह पे बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत ना पड़े। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है तो लोग कहते हैं कि यार गवर्नमेंट तानाशाही कर रही है, हर जगह दखल अंदाजी कर रही है। हमारी इंडियन इकॉनमी में भी 1991 में हम लोगों ने अपनी इकॉनमी को खुला छोड़ा, लिबरलाइजेशन किया, यानी प्राइवेट कंपनीज भी आके बिजनेस खोल सकती हैं, सरकार से प्रायरली किसी तरह का लाइसेंस लेने का ज़रूरत नहीं है। यानी गवर्नमेंट किसी तरीके से इकोनॉमी में, डेवलपमेंट में प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाना चाहती है अगर, तो गवर्नमेंट को अपना घुसपैठ कम करना पड़ेगा। उसी का कंटेक्स्ट है नो गवर्नेंस इज गुड गवर्नेंस। कभी कभी इसको ई गवर्नेंस से भी रिलेट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, इनकम टैक्स पहले भरना इतना आसान नहीं होता था, लंबी लाइनें लगती थी,
बिजली का बिल भरने के लिए लंबी लाइनें लगती थी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अपना एक आदमी, एक एजेंट वहाँ पे बिठा रखी थी, ऑफिस खोल रखी थी, इंफ्रा लगाना पड़ा वहाँ पे जहाँ पे बिल जमा होता है, सरकारी अफसर बिठाने पड़े। अब अगर मान लो आदमी अपने मोबाइल फ़ोन से एक मैसेज टाइप करके, एक OTP जनरेट करके, एक ऐप का इस्तेमाल करके अगर अपना पेमेंट कर दे रहा है, तो सरकार का इंटरवेंशन कम हो रहा है। तो उसी को नो गवर्नेंस इज गुड गवर्नेंस कहा जाता है। इसी को नो गवर्नेंस इज गुड गवर्नेंस कहा जाता है। तो यहाँ पे द नो गवर्नेंस इज गुड गवर्नेंस मॉडल दैट दीज कंट्रीज हैव अडॉप्टेड, राइट, हैज रिमूव्ड गवर्नमेंट रेगुलेशन, dismantled and sold off public assets, and privatized strategic industries. All this has been done in the name of reforms. So no governance is good governance model is already adopted by these countries. India is at the forefront of it. Cowin portal. What was Cowin portal? आपको सरकारी अस्पताल तक जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद कोविन पोर्टल पे आ जाएगा मैसेज। तो आप बोलो सर कोविन पोर्टल क्या गवर्नेंस का पार्ट नहीं है? कोविन पोर्टल गवर्नेंस का पार्ट नहीं है। कोविन पोर्टल एक तरीके से ये कह सकते हैं गवर्नमेंट आपको मीडियम प्रोवाइड कर रही है इजी कम्युनिकेशन का। गवर्नेंस क्या होता है? जहाँ पे हम तुमको परमिशन देंगे, नहीं देंगे, जहाँ गवर्नमेंट हाँ या ना बोल सकती है, गवर्नमेंट पैसे को ऊपर नीचे कर सकती है, फंडिंग कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, या आपको जेल में डाल सकती है। तो ये सब गवर्नेंस का पार्ट होता है। तो नो गवर्नेंस इज गुड गवर्नेंस हमने हमारे जीएसटी रेजिम में भी तो देखा है कि हमारे यहाँ पे टैक्स पेयर्स जो हैं जीएसटी के अंडर बढ़ते जा रहे हैं, साथ में टैक्स कलेक्शन अमाउंट भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट ने अपना इंटरवेंशन कम कर दिया है। सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे आप जीएसटी पे करते रहिए। तो ये जो डेवलप्ड कंट्री ने ये जो मॉडल पकड़ा है, उससे हुआ क्या है? उसका है कि इट हैज़ रिमूव्ड गवर्नमेंट रेगुलेशन। ठीक, इस मॉडल में गवर्नमेंट का रेगुलेशन खत्म हो जाता है। डिसमेंटल्ड एंड सोल्ड ऑफ पब्लिक एसेट्स, यानी सरकार अपने इन्वेस्टमेंट्स, पब्लिक एसेट्स का मतलब सरकारी दफ्तर इतनी बड़े बड़े खोल रखे हैं, सरकारी ज़मीनें जो हैं, सरकार क्या करती है? अपने एसेट्स को प्राइवेटाइज करती है, बेचती है, पैसा कमाती है। सोल्ड ऑफ पब्लिक एसेट्स, क्योंकि गवर्नमेंट अब बिजली घर के लिए हमें अगर ऑफिस रखने की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे, तो हम घर बेच देंगे, ज़मीन बेच देंगे, सरकार कमा लेगी, रख लेगी पैसा, उसको कहीं और यूज़ कर सकती है। और प्राइवेटाइज कर दिया है स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज़ को। स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज़ जो यूज़ किया है यहाँ पे, उसका मतलब है जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे इंडिया में 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट मानी जाती हैं, जिसमें माइनिंग है, जिसमें आपका रेलवेज़ है, जिसमें आपका एनर्जी प्रोडक्शन वाली चीज़ें हैं, ये सब डैम्स हो गया, स्टील इंडस्ट्रीज़ हो गया, ये सब की स्ट्रेटेजिक 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में आता है। तो ऐसे ही स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेटाइज कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं हमें 1990s के अपने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की तरफ भी ले जा रहा है। इंडिया ने भी उसका पार्ट किया, लेकिन अभी पैसेज में लार्जली कौन से मॉडल की बात हो रही है? वेस्टर्न इकोनॉमीज के मॉडल की बात हो रही है। ठीक है, ऑल दिस हैज बीन डन इन द नेम ऑफ रिफॉर्म्स। द G20 declaration reiterates, just give me a minute, okay? भैया इसमें बोल रहा है कि जितने भी एग्रेसिव रिफॉर्म्स हुए हैं, मतलब रिफॉर्म्स आए हैं, वो एग्रेसिवली मैक्सिमाइज करते हैं कैपिटलिज्म को, और उसकी वजह से जो हमारे गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है प्रोजेक्ट स्कीम्स में, वो डिक्रीज हुआ है, और वो उतना नो, इफेक्टिव नहीं रहा है। नहीं, ये नहीं कह रहा है, फिर से पढ़ो। कार्तिकेय, सर एक सेकंड। शोआ, Sir, it says that women-led development schemes. उसके आगे वाला पॉइंट, जस्ट एज से आपको पढ़ना, जस्ट एज रिफॉर्म इज द कवर,
You have to explain me that particular line. So read it again. आराम से रीड करिए. सर इसमें कह रहा है कि मतलब जो वुमेन लेड डेवलपमेंट स्कीम्स हैं वो गवर्नमेंट के डिक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट को, मतलब जो उनका डिक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट है उसको हाइड करता है. ठीक है, ठीक है. यहाँ पे ऑथर ने वेस्टर्न इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी या वेस्टर्न गवर्नमेंट मॉडल्स और इंडियन गवर्नमेंट का करंट पोजीशन दोनों को अब रिलेट करने का काम किया है. उसने ये कहा है कि जिस तरीके से रिफॉर्म्स के नाम पे, कौन से रिफॉर्म्स की बात कर रहा है बेटा, जो नो गवर्नेंस इज गुड गवर्नेंस और फाइनेंस कैपिटल जो कंपनीज को सब्सिडी, लैंड ग्रांट्स, इस तरीके के जो चीज़ें अभी डिस्कस की हमने, जो भी हमने ऊपर अभी बात करी, उन रिफॉर्म्स की बारे में ऑथर कह रहा है कि जस्ट एज रिफॉर्म इज़ द कवर, यानी जिस तरीके से रिफॉर्म ढाकते हैं, कवर मतलब ढाकते हैं किस चीज़ को, एग्रेसिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मॉडल्स ऑफ कैपिटलिज्म को. जैसे ही वर्ड कैपिटलिज्म आया तो आपके दिमाग में तुरंत वेस्टर्न इकोनॉमीज आ जानी चाहिए. उनके बारे में बात कर रहा है कि रिफॉर्म जब ये लोग करते हैं तो मेन इंटेंशन कैपिटलिज्म में कोई भी बदलाव करने का क्या रहता है, ऐसा बदलाव करो कि हमारा मुनाफा बढ़े. ये कैपिटलिज्म का मॉडल ही है. तो जैसे कह रहा है कि रिफॉर्म के नाम पे कैपिटलिज्म मुनाफा कमाता है, उसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने भी क्लेवर चतुराई करी है. चतुराई क्या करी है कि वुमेन डेवलपमेंट जब तक फोकस था तब तक गवर्नमेंट को अपना पैसा महिला विकास में, वुमेन डेवलपमेंट में लगाना पड़ता था. अब सरकार जब ये दर्शाने लग गई है, ये दिखाने लग गई है कि अब डेवलपमेंट वुमेन का करने की ज़रूरत नहीं है, अब तो महिलाएं डेवलपमेंट कर रही हैं मेरे मित्रों, तो उस केस में गवर्नमेंट हाइड कर रही है, छुपाना चाह रही है, कंसील कर रही है कि अपना जो गवर्नमेंट अभी तक पैसा लगाती थी प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स में फॉर वुमेन डेवलपमेंट, वो कम हो रहा है. उसको छुपाने की कोशिश कर रही है सरकार, उसको वुमेन लेड डेवलपमेंट बोल के. धांधलेबाजी, धोखाधड़ी, मिस रिप्रेजेंटेशन, ऐसा ऑथर कुछ कहना चाह रहा है. अब देखो क्या डिफरेंस है, क्यों है ये डिफरेंस. डिफरेंस किस में, इंटरप्रिटेशन में. ये गैप है, इसी वजह से आपका क्लैट में सिलेक्शन नहीं होगा. कुछ हद तक कार्तिकेय ने वो बात लास्ट में पकड़ी, लेकिन टाइम ज़्यादा लगाया. आप लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया. और यही ब्यूटी है एडिटोरियल रीडिंग की. तो उसको रीड ही नहीं करना है, उसको थ्रेड बेयर बेसिस पे समझना है. एक बार अगर आपने फ्लो पकड़ लिया ना इंग्लिश लैंग्वेज का, एक बार आप, थोड़ा बहुत गलत सही चलता है, लेकिन अगर आपने एक बार लय पकड़ ली उसकी कि क्या अंग्रेज़ी भाषा कैसे लिखी जाती है या किस तरीके से उससे मीनिंग जूस आउट किया जाता है, तो फिर आपका क्लाट में सिलेक्शन उसी दिन हो जाएगा. उसी दिन क्लाट लिखोगे, उसी दिन सिलेक्शन हो जाएगा. इट्स ऑल बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज इज़ अनफेमिलियर टू यू गाइस. मुझे तो यही समझ में आता है, कोई मतलब नहीं हुआ आप लोग को अंग्रेज़ी मीडियम के स्कूल्स में पढ़ने का, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ाई नहीं जाता ये सब. अंग्रेज़ी भाषा पढ़ो कैसे. हमारे को याद है कि स्कूल में सबसे फैंसी टीचर्स इंग्लिश के ही होते थे. सबसे हट के टीचर्स, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अंग्रेजी के ही होते थे. पर वो अंग्रेजी बेचारे सर यस सर. सिखा ना पाए अंग्रेजी, लेकिन अंग्रेजी हरकतें सीख गए हम लोग, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीख पाए. इट्स अ फॉरेन लैंग्वेज टू या अस, नो. यस. मेरा इंग्लिश में तो ऐसा था कि जैसे एक दिन पहले ही सारा पढ़ लो, मतलब छोटा छोटा समरी वाइज भी पढ़ लेता था, स्टोरीज, वैसे तो सबने लिटरेचर ही तो दिया है. वो अरे हो जा वो हो जा स्कूल एग्जाम तो वैसे ही सबने वैसे ही दिया है. तुमने बोर्ड्स वैसे ही दिए हैं और 80 90 90 मार्क्स आ जाते थे बिना कुछ करे. सेंटेंस मेकिंग इंग्लिश का ठीक है मेरा, बट अब ये सब थोड़ा एडिटोरियल थोड़ा स्टैंडर्ड ज्यादा ही है.
नहीं, समझ में कम आता है। समझ में इसलिए कम आता है क्योंकि इसमें जनरल अवेयरनेस भी चाहिए। जो जनरल अवेयरनेस आ जाएगी तो हो जाएगा काम। जैसे नो गवर्नेंस इज गुड गवर्नेंस के का बैकड्रॉप ही नहीं पता उस स्टेटमेंट का, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे भी आप लोग का जो मेन पॉइंट गड़बड़ाया वो इसीलिए गड़बड़ाया कि वुमेन डेवलपमेंट और वुमेन लेड डेवलपमेंट में नैरेटिव क्या डिफरेंट हो रहा है। पूरा पूरा मुद्दा ही बदल जा रहा है। आगे देखिए, सरकार ने 2005-2006 में एक नया टर्म निकाला था, नया तरीका निकाला था जिसको जेंडर बजट कहा गया। जेंडर बजट क्या था? एक तरीके का टूल था। टूल जिससे कि गैप्स को प्लग करेंगे। प्लग द गैप्स मतलब क्या होता है? प्लग द गैप्स मतलब लूप होल्स को भरेंगे, कमियों को फिल करेंगे। जो कुछ जगह अगर खाली रह गई है तो उसको भर देंगे, प्लग द गैप मतलब खामियों पे काम करेंगे। तो जेंडर बजट 2005-2006 को इस्तेमाल करना था टूल की तरह इन गैप्स को प्लग करने के लिए। कौन कहाँ पे गैप थे प्रिसाइसली? इन्वेस्टमेंट पे। सरकार की बजट से पैसा जो महिलाओं के लिए हो, राइट, तो उसको प्रायोरिटी दी गई। प्रायोरिटी दी गई। और अब आज के टाइम पे ऑथर कह रहा है कि वो सिर्फ एक महज एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज बन गई है। यानी सरकार ने अगर किसी योजना पे 10,000 करोड़ रुपए लगाए तो बाद में जाके एक अकाउंट्स वाला कह देता है कि अच्छा इस सरकारी योजना के अंदर बेनिफिशियरी कितने हैं, चलो उनका मेल फीमेल इवैल्यूएशन कर लेते हैं और इतने % फीमेल होगी बता के दिखा देंगे। जबकि ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए कि वो 10,000 करोड़ में महिला लाभार्थी वुमेन बेनिफिशियरीज को ज़्यादा फायदा मिले। हालांकि उज्ज्वला योजना इससे थोड़ा हटके है, जहां पे सरकार ने दर्ज दिखाने की भी कोशिश की और शायद वुमेन बेनिफिशियरी ज़्यादा थी भी उसकी, लेकिन वो वन ऑफ द स्कीम्स है, लार्जली हर जगह होना चाहिए। अब इस जेंडर बजट के दो कंपोनेंट्स थे जब 2005-2006 में इंट्रोड्यूस किया गया से लेके अभी तक। इसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए है और पार्ट बी है। इस जेंडर बजट का पार्ट ए कहता है ऐसी स्कीम्स को इंक्लूड करता है जो 100% है महिलाओं के लिए, यानी प्योरली ओनली फॉर फीमेल्स। और इस जेंडर बजट का दूसरा पार्ट जो है वो ऐसी योजनाओं को इंक्लूड करता है जहां पे 1/3 बेनिफिशियरी कौन है? महिलाएं हैं। 1/3 एक्सपेंडिचर जो है वो वुमेन के लिए ही किया जाएगा। ये आइडिया था जेंडर बजट का, लेकिन ऑथर कह रहा है कि अब उसको लागू करने के लिए विल पावर खत्म हो गया है, क्योंकि वो बस एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज हो गई है। किसी भी स्कीम से पार्ट ए कितना है, पार्ट बी कितना है, ऐसे करके लोग अब निकालने लग गए हैं, सरकारें ये काम करने लगती हैं। तो वुमेन लेड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? अब वुमेन लेड डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जो महिलाओं के लिए जो बजट है, जो जेंडर बजटिंग पे जो पैसा है वो बढ़े। ऑथर ये मान के चल रहा है कि डेवलपमेंट का मतलब लेड डेवलपमेंट, एनी बड़ी लीड्स या लेड डेवलपमेंट का मतलब ये है कि बजट में इस पर्टिकुलर व्यक्ति का जो शेयर है, बजट में इस पर्टिकुलर व्यक्ति का जो शेयर है वो ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि ऑथर कह रहा है कि मोर बजट यू इंक्रीज द बजट, दैट पर्टिकुलर सेक्शन विल लीड द डेवलपमेंट। अब जब आपने ऐसी चीज बोली तो इसी को कहते हैं कि ऑथर ये क्या कर रहा है? अजम्पशन लेके चल रहा है। ऑथर ये अज्यूम कर रहा है, जहां पे ये बात कहता है कि सब्सटैंशियल इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द जनरल बजट वुमेन लेड डेवलपमेंट शुड मीन। ऑथर इज अज्यूमिंग, बिकॉज शुड का मतलब क्या है? आप कब कहते हो शुड? तो जैसे भैया जब मैंडेट करते हैं। मैंडेट नहीं करते हैं तब थोड़ी शुड कहते हैं। हट, आप कहते हो यू अच्छा, शुड नॉट अब्यूज, तो आप क्या अज्यूम करते हो यहाँ पे कि गाली देना गलत है। तो वैसे ही जब ऑथर ने कहा कि वुमेन लेड डेवलपमेंट शुड मीन अ सब्सटैंशियल इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द बजट, तो ऑथर कह रहा है कि मान के चल रहा है कि अगर बजट में किसी का एलोकेशन बढ़ता है, किसी को ज़्यादा पैसा दिया जाता है, तो बाद में डेवलपमेंट वही करता है। फॉर एग्जांपल आज अगर कोल इंडस्ट्रीज़ को हम अपने बजट में कोल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, तो कल को देश का विकास किसके द्वारा होगा? कोल इंडस्ट्रीज़ के द्वारा होगा। आज के टाइम पे अगर हम बजट एजुकेशन पे बढ़ाएं तो कल को यही पढ़ा लिखा वर्ग देश का विकास करेगा। तो वही अजम्पशन ऑथर यहाँ पे भी लेके जा रहा है। कह रहा है कि अगर जेंडर बजट में पैसा बढ़ रहा होता तो कहते कि वुमेन लेड डेवलपमेंट है, शुड मीन, बट ऐसा हो नहीं रहा है। इट शुड ऑल्सो रिफ्लेक्ट इन
second point, it should also reflect in a much bigger component in the expenditure in part A rather than in part B. Second देखिए, part A part B मतलब ऑथर कह रहा है ऐसी योजनाओं में इंक्रीज होना चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए जो 100% फॉर वुमेन है। पार्ट बी में क्या था, जिस ऐसी योजनाएं थी जिसमें 1/3 बेनिफिशियरी वुमेन होगी, है ना। लेकिन पार्ट ए क्या था, 100% वुमेन के लिए स्कीम। सुन रहे हैं ना सब कोई, एवरीबडी इज फॉलोइंग टिल हियर? Yes, sir. ग्रेट। यस सर। अब ऑथर देखिए वर्ड यूज करता है हाउएवर। हाउएवर ऑन बोथ काउंट्स, पार्ट ए पार्ट बी, दोनों जो दो काउंट्स कौन से हैं, पार्ट ए पार्ट बी नहीं, ये पहला काउंट ये दूसरा काउंट, increase in the gender budget and increase in part A. However, on both counts, the opposite trend dominates, which means author के assumptions के against government काम की है। The total gender budget, अच्छा author के assumption के against government काम की है, वही inference हो जाएगा हमारे लिए। The total gender budget for 2023-24 was reduced from 5.2% to 5%। क्या गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रैडिकल डिक्रीज किया है? नहीं, पर ग्रेजुअली कर रही है। ये छोटा छोटा परसेंटेज का डिक्लाइन हमको बताता है कि ग्रेजुअली धीरे धीरे खत्म हो जाएगा एक समय के बाद, 2030 तक मे बी ये 2% 3% हो जाए। On average, there has been no substantial increase in the gender budget since its inception, which has remained between 4% and 6%. What is of greater concern is that in 2023-24, इस साल, the year that the phrase women-led development was used, the expenditure in part A was around 39%, part B was 61% of the total allocated budget. In other words, wholly women-specific schemes are just about 40% of an already inadequate budgetary allocation. यानी ऑलरेडी आपने एक तो पैसा कम लगाया है, उस पैसा कम लगाए में भी पार्ट ए का कंपोनेंट सिर्फ 40% है, तो ज़्यादा सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। अब ऑथर नेक्स्ट पार्ट पे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को वैल्यू देते हुए क्या कह रहा है? कह रहा है क्रिटिकल एरिया रिकॉग्नाइज्ड as being prerequisite for women's development is our economic independence. Who will explain this line to me? Come on, who will explain this line? Sir, a critical area recognized by author is that women's development is required for her economic independence. Bus. No. Women development is required for her economic. No. Women development is required for her economic independence. Yes, sir, independence. No. Economic independence is important for women's development. तुम उल्टा कह रही हो शायद। हाँ सर, वही मतलब इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस उसके डेवलपमेंट के लिए एक प्री रेक्विजिट है, और हाँ ये बस ऑथर ने एक आप क्रिटिकल एरिया सुनो निकाला मेरी है। बात, जिस भाषा में जिस लय में तुमको स्टेटमेंट समझ में आया, इसी लय में समझाया करो खुद को, और इसी लय में पैसेज भी पढ़ा करो। तुमने इंग्लिश का ओके सर। स्टेटमेंट पढ़ा, उसके बाद तुमने उसको इंग्लिश में समझाने की कोशिश की, तो तुमने ब्लंडर कर दिया, है ना। अब तुमने जैसे खुद यस को फिर सर। उसको तुमने बाद में कैसे कहा कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस प्री रिक्विजिट है वुमेन डेवलपमेंट के लिए, तो ऐसे आपको देखो, आप हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस देखो, आपने इंग्लिश के वर्ड्स को पकड़ के हिंदी में समझाया खुद को कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट है, यानी इंपॉर्टेंट है, पहले होनी चाहिए वुमेन डेवलपमेंट के लिए, तो फॉर है, तो ये मतलब वाली चीज इकोनॉमिक क्या। सर, मतलब जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है सर, वो सब मतलब एक बेस है, मतलब वो तो सर होना ही चाहिए, मतलब एक आधार है, मतलब आधार है, यस इज द बेस। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं होगी तो कैसे वुमेन डेवलपमेंट होगा? क्या वुमेन डेवलपमेंट हो रहा है फिर अगर महिला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो? यानी ऑथर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन पे फोकस लेते हुए इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन पे फोकस करते हुए चल रहा है। कह रहा है हाउएवर द शेयर ऑफ वुमेन इन रेगुलर वेज्ड वर्क फेल इन इंडिया, यानी ऑथर यहाँ पे ये भी एज्यूम कर रहा है कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस महिलाओं को तब मिलेगी जब सरकार उनको लाभार्थी बनाए, बेनिफिशियरी बनाए, नहीं जब ये महिलाएं रेगुलर वेज्ड वर्क मतलब एक फिक्स्ड इनकम सैलरी वाला काम करें। ऑथर ये एज्यूम कर रहा है कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए रोजगार करना, जॉब करना, काम करना ज़रूरी है।
अकॉर्डिंग टू एनालिसिस ऑफ द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे फ्रॉम, अब कह रहा है कि रेगुलर वेजेड वर्क वुमेन जो है 21% से घट के 15.9% हो गया है। यानी रोज ऑफिस जाने वाले रोजगार में महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम होता हुआ नजर आ रहा है। 95% महिलाएं जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब ठेले वाले हो गए, सब्जी वाले हो गए, जो रोज कमाते रोज खाते हैं, विथ नो जॉब और इनकम सिक्योरिटी। 95% वुमेन आर वल्नरेबल टू इट। मोस्ट वुमेन आर एम्प्लॉयड इन फ्लैगशिप स्कीम्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो योजनाएं निकाल रखी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मनरेगा। मनरेगा ही की बात कर रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि उसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं काम कर रही हैं। ये अच्छी बात थोड़ी है। सरकारी योजनाओं में महिलाएं काम करें, ये अच्छी बात नहीं है ना। महिलाओं को तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस में काम करना चाहिए। ऑथर कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है। यानी वुमेन एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स दैट वर नॉट ओनली रिलेटेड फॉर वुमेन इज नॉट अ गुड साइन। इसका मतलब इन महिलाओं को मजबूरन सरकार के पास एज अ लास्ट रिजॉर्ट आना ही पड़ रहा है। ऑलमोस्ट 1 करोड़ वुमेन आर वर्किंग इन आंगनवाड़ीज, आशा वर्कर्स। व्हाट इज आशा? आशा स्टैंड्स फॉर एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। यानी ये सरकार के लिए काम करती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर काम करती हैं। आशा बहन, आशा दीदी बोलते हैं। और ये लोग करती क्या है? ये ग्रामीण महिलाओं को जन चेतना, पब्लिक अवेयरनेस कर पाती है। ठीक है। मिड डे मील स्कीम वर्कर्स, फैसिलिटेटर्स एंड सो ऑन। अब ये सरकार के लिए काम तो करती हैं, लेकिन ये मोस्ट एक्सप्लॉयटेड है। क्यों? क्योंकि उनको अलाउंस मिलते हैं जो कि उनके मिनिमम वेजेस से भी कम है। उनको यानी छोटा मोटा पैसा, अलाउंस मतलब छोटा मोटा पैसा मिल जाता है। और सरकार उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉई भी नहीं मानती है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई वाले पर्क्स भी उनको नहीं मिलते। यानी वो वल्नरेबल है, प्रोटेक्टेड नहीं है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की अगर हम बात करें तो शेयर ऑफ वुमेन एंगेज इन एग्रीकल्चर इज इंक्रीज्ड 55.3% से 64.3%। तो अगर एग्रीकल्चर में महिलाएं बढ़ रही हैं तो ये तो अच्छी बात होनी चाहिए। लेकिन ऑथर कहता है नहीं, ये अनपेड वर्क है जो अपने घर के खेतों में कर रही हैं महिलाएं। इसका मतलब बाहर उनको कोई काम नहीं मिल पा रहा है, गवर्नमेंट उनको फ़ायदा नहीं दे पा रही है, बेचारी घूम फिर के अपने घर के खेतों में काम करने आ जा रही हैं, जो कि अनपेड वर्क है। वो उनकी ड्यूटी जिम्मेदारी ही मानते हैं लोग। The budgetary allocation for paid work mandated by law in rural work projects through Manrega has been drastically cut down by the central government. The budgetary allocations for paid work mandated by law, अब कह रहा है मनरेगा में भी सेंट्रल गवर्नमेंट कटौती करते चली जा रही है। This mostly has a negative impact on women who constitute 50 to 80% of workers in several states. मनरेगा में लार्जली महिलाएं काम कर रही हैं, वही ऊपर भी कह रहा था, यही यहाँ पे भी कह रहा है। अब कंक्लूजन पे लास्ट पॉइंट एक रख रहा है, कह रहा है कि रियलिटी इज दैट अगर दलित और आदिवासी की बात करें महिलाएं, तो इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से इनको ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। बियरिंग द ब्रंट मतलब पूरा भार इन्हीं पे आ रहा है, निगेटिव इम्पैक्ट इन्हीं पे है। बिकॉज नेशनल रिसोर्सेज को उठा के 1% लोगों को दे दिया गया है, जो 40% कंट्री के वेल्थ, ये ऑब्वियसली आपके रॉ मटेरियल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मिनरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि 40% कंट्री वेल्थ आज ये लोग गवर्न करते हैं, जो कि दलित और आदिवासी महिलाओं को नहीं इंक्लूड कर रहे ऑब्वियसली। ये कॉरपोरेट लेड डेवलपमेंट है, ना कि वुमेन लेड। आखिरी में ऑथर ने एक ड्रॉन अ पैरेलल between India and Western economies कि धीरे धीरे इंडिया इनके वाले मॉडल्स को क्रिटिसाइज कर रहा है, अडॉप्ट करते जा रहा है, और ऑथर इन्हीं मॉडल्स को क्रिटिसाइज कर रहा था यहाँ पे। तो ये था मेन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज जो हम अभी हाईलाइट कर रहे हैं। ये क्या था? मेन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज था कि ऐसे में महिलाएं कहाँ जाएंगी। इस वाले पार्ट पे ऑथर ने अपने सजेशंस दिए हैं। उसके बाद ऑथर ने जो भी पूरे एडिटोरियल में बताया है वो सारे के सारे एविडेंसेस हैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए। ये कंक्लूजन यहाँ नहीं आएगा, इसीलिए कंक्लूजन को ये है और यहाँ है कंक्लूजन। ये जो है ये ऑथर का मेन बॉडी है। ऑथर के आर्ग्यूमेंट्स जो आ रहे हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, मेन आर्ग्यूमेंट्स।
तो आपसे स्ट्रेंथनिंग आर्गुमेंट, वीकनिंग आर्गुमेंट पूछ देगा, तो ऐसी जगह पे पूछ देगा। अब ये आर्टिकल अपने आप में कितने वर्ड्स का है? अराउंड आई थिंक दिस इज क्लोज टू 1200 वर्ड्स, क्लोज टू 1200 वर्ड्स। तो गैप आप समझ सकते हैं, यू कैन आइडेंटिफाई द गैप, ट्राई टू फिल इट, एंड हाउ इट कैन बी फिल्ड बाय रीडिंग मोर। समझ में आया? बहुत बड़ा गैप है भाई, ये रीडिंग से ही फिल होगा। तो क्या कर रहा हूँ मैं तुम लोगों को, दो छोटे छोटे एडिटोरियल्स हैं आज के द हिंदू में आए हैं, एक लॉ ऑफ नंबर्स है और अ केस ऑफ रिवांचिज्म है। ये दोनों एडिटोरियल्स भेज रहा हूँ, ठीक है? आई एम सेंडिंग इट टू यू इन द मेल itself. Read it. After 10 minutes we'll give a quick discussion on these two editorials also. ठीक है?